Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's start the part 2 session of our Thantology. Okay, जहाँ पे हम आज immediate sign of death और up to the some extent of our the early sign of death. Okay, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. Okay, तो immediate sign of death ultimately मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था पार्ट 1 में कि as soon as person die जो चेंजेस दिखाई देते हैं between 0 to 3 hour. Okay, that is nothing but our immediate sign of death. Okay, तो इमीडिएट साइन ऑफ डेथ में अल्टीमेटली होता क्या है, लॉस ऑफ वॉलेंट्री पावर. ओके, जितने भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं दे आर बिकम दे लॉस. ओके, देन अल्टीमेटली जो पल्स रेट होता है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होते हैं. ओके, दे ऑल अल्टीमेटली एबोलिश्ड. द सेजेशन ऑफ द लंग फंक्शन, देन द नो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स. ओके, दैट इज नथिंग बट द लंग फंक्शन गेट्स स्टॉप्स. ओके, सेजेशन ऑफ द कार्डियक फंक्शन, नो कार्डियक मूवमेंट. Immediate changes after death, that is nothing but the immediate sign of death. Okay, pulse is not palpable, heart sound is not audible. Okay, respiratory movement are not visually perceptible. Okay, that is nothing but the respiratory, the lungs, that is what we have called in the previous class. Okay, that is nothing but asphyxia. Okay, three parts of life: the brain, heart and lungs. Okay, that is called a tripod of life. Okay, the pulse is not audible, heart sound is not audible, respiratory movements are not visibly perceptible, reflexes either absent or not possible. Okay, person may not actually dead and he can revive in most cases by resuscitation. Okay, so that is the exceptional cases. The person may ultimately may alive. Okay, by doing a CPR. Okay, so that is nothing but in the somatic death. Okay, as soon as the person die or person completes their molecular death, so he may not revive again. Okay, then recognizing this condition is important in order to prevent the premature certification of death. Okay, that is something but before the confirming a particular person is die or not, we have to determine the molecular death is done or not. Okay, so recognizing this condition is important in order to prevent the premature certification of death. So legal certification is required to confirm a kind of death. Okay, then immediate changes में मैंने आपको जैसा अभी confirm किया कि result in the complete and irreversible cessation of the function of the brain, heart and lungs. Okay, the muscle of body become flaccid, corneal reflexes get abolished. Okay, they are lost and ultimately हमारा जो सेकेंड आता है चेंजेस, दैट इज नथिंग बट द अर्ली चेंजेस. अर्ली चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस है बट यहाँ पे हम आज अल्टीमेटली इस क्लास में पार्ट 2 में हम दो साइन को देखेंगे. ओके, दैट इज नथिंग बट द चेंजेस इन स्किन एंड चेंजेस इन द आई. ओके, और बाद में जितने भी बचे हुए जो टॉपिक है अलगार मोटिस, रिवर मोटिस और रेगर मोटिस, वो हम बचे हुए पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे. ओके, तो अर्ली चेंजेस मीन्स जो चेंजेस हमें 12 to 24 आवर्स में सीन होता है. ओके, तो टेक्स प्लेस बिटवीन द फर्स्ट 12 to 24 आवर. ओके, और फर्स्ट 3 आवर में जो हमें सीन हो रहे थे, जो फर्स्ट 3 आवर में जो हम देख रहे थे, दैट इज नथिंग बट आवर इमीडिएट साइन ऑफ डेथ. ओके, तो इट कंप्राइजेस द चेंजेस इन द स्किन, चेंजेस इन द आई, अलगार मोटिस, लीवर मोटिस एंड हमारा रिगर मोटिस. ओके, तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस स्किन में देखने को मिलता है, लेट्स सी दैट. तो थैंटोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं. पोस्टमार्टम चेंजेस है, अर्ली साइन ऑफ डेथ मीन सेलुलर डेथ. ओके, तो चेंजेस इन द स्किन, हियर यू कैन सी द पैलर एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन. ओके, इफ यू particularly try to particular hold the skin of the dead person or died person. Okay, the loss of elasticity, the elasticity of the skin get lost. Okay, that is called as a pallor mortis. Okay, or the skin of the dead person is become pallor. Okay, the pallor and loss of elasticity of the skin, that is called as a pallor mortis. Okay, changes in the eye, that is nothing but the Beloglow's signs of death appear 10 to 15 minutes after death. Okay, that is the changes in the eye. तो व्हाट इज़ द बेलोग्लोव्स साइन. ओके, उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है. तो प्राइमरी फ्लासिडिटी ऑफ मसल, कूलिंग ऑफ बॉडी, पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड रिगर मोटिस. ओके, दीज आर द चेंजेस इज हैपन इन द अर्ली साइन ऑफ डेथ. तो चेंजेस इन स्किन मैंने आपको बताया कि पैलर एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन होती है. चेंजेस इन आई क्या क्या होता है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, और बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये देखिए बेलोग्ले जो साइंस है उसको बताने के लिए मैंने पर्टिकुलर ये जो डिटेल है मैंने कलेक्ट किया था. ओके, तो ये देखिए इज़ एन अर्ली एंड फेवरेबल रिलायबल साइन ऑफ बायोलॉजिकल डेथ ड्यू टू द एनी कॉसेस. ओके, तो अल्टीमेटली अर्ली साइन ऑफ डेथ, और उसमें से जो हमारा आई वाला जो साइन ऑफ डेथ है, ओके, उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि आई वाले जो चेंजेस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर साइन को निकाला है. ओके, तो उसको बताने से पहले ये डायग्राम आप देख लीजिए. ये देखिए, जब हम आई को दोनों साइड से लेटरली जब हम कंप्रेस करते हैं ना, तो इसके प्यूपिल्स पे कोई मूवमेंट्स नहीं होता है. ओके, जस्ट उसी को हम क्या बोलते हैं, बेलोग्लेज साइंस बोलते हैं. ओके,
तो वही यहाँ पे लिखा गया है, अ स्लाइट लेटरल स्क्वीजिंग ऑफ द ह्यूमन आईबॉल लीड टू अ चेंज इन द प्यूपिल टू एन ओवल शेप। ओके, वो ओवल शेप में चेंज हो जाता है। और नॉर्मली कोई चेंज नहीं, मतलब नॉर्मली अगर पर्सन अलाइव रहेगा या फिर वो अलाइव रहेगा तो उसमें कोई चेंजेस मतलब वो चेंज होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एज सुन एज पर्सन डाई अ स्लाइट लेटरल स्क्वीजिंग ऑफ द ह्यूमन आई बॉल फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन आई lead to changes in the pupil to an oval shape. Okay, that is nothing but the resemble with the vertical pupil in cat. Okay, vertical pupil in cat. So that is nothing but our Bellogles sign or symptom, you can say. So in a living person, such a deformation of the pupil does not occur due to the muscle that narrow the pupil and the intraocular pressure. Okay, due to the intraocular pressure and pupils की narrow particularly muscle की वजह से pupils does not changes their shape. Okay, but what we are observing here कि pupils become oval in shape. Okay, after applying or after squeezing the lateral pressure to the eyeball. Okay, so death also lead to the denervation and atony of the muscle that narrow the pupils, cessation of the blood circulation to a retina. Okay, तो जस्ट यहाँ पे वही बताया गया कि 15 to 20 मिनट आफ्टर डेथ ओके ये साइन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो व्हाट चेंजेस वी कैन सी इन द चेंजेस इन द आई। ओके, तो अर्ली साइन में हम देख रहे हैं चेंजेस इन द स्किन। अर्ली साइन में मैंने आपको बताया चेंजेस इन द स्किन, चेंजेस इन द आई, अलगर मोटिस, लिवर मोटिस और राइगर मोटिस। ओके, तो अर्ली साइन में हमने आपको बताया कि स्किन में पैरेलल और इलास्टिसिटी ऑफ स्किन लॉस हो जाती है। अभी हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन द आई। ओके, तो लैक्रिमेशन जो रहता है, कोई भी नो लैक्रिमेशन, नो सिक्रेशन ऑफ देयर लैक्रिमल। ओके, चेंजेस इन द कॉर्निया, कॉर्निया जो रहता है ड्राई हार्ड हो जाता है वो, एंड बिकम मोर ओपेक एंड रिंकल्ड। ओके, स्क्लेरा में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलता है, दैट इज़ अ 10 पार्टिकल सीटेड ओवर द स्क्लेरा, ब्राउन इज डिस्कलरेशन। ओके, रेटिना के ऊपर ब्लड वेसल्स बिकम मर्ज एंड सीन ब्रोकन सेगमेंट ऑफ द रेटिनल वेसल्स। ओके, तो दीज आर द चेंजेस वी कैन पर्टिकुलरली फाइंड आउट इन द अर्ली साइन ऑफ अ डेथ पर्सन। ओके, एंड भी कुछ और भी कुछ बताया गया है। ओके, ये देखिए ऑप्टिक डिस्क जो कि रहता है कि वो पेल विजिबली होता है। ओके, इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर होता है अल्टीमेटली देखिए नॉर्मली 14 to 25 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी रहता है। इमीडिएट डेथ में क्या होता है 12 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाता है, यानी कि क्या होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है। ओके, इसीलिए जो आई बॉल होता है वो बाहर के साइड बल्जेट आउट हो जाता है। ओके, बल्जेस आउट हो जाता है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर intraocular tension or intraocular pressure they falls so rapidly that by 2 hours of death tension is nearly zero and eyeball appear sunken. Okay, तो ये देखिए आफ्टर 2 आवर जो इंट्राओकुलर जो प्रेशर होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो पूरा जो टेंशन होता है आई बॉल का अल्टीमेटली वो इंट्राओकुलर प्रेशर दैट इज़ नथिंग बट बाय आवर एक्यूज ह्यूमर और जो हमारे विट्रस ह्यूमर रहते हैं उनसे ही रहते हैं। और बट एज सुन एज पर्सन डाई ये जो फ्लूइड होते हैं अल्टीमेटली वो क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है ज़ीरो हो जाता है। ओके, प्यूपिल का डायलेटेशन क्या होता है 0 mm हो जाता है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट आवर अर्ली साइन ऑफ डेथ। ओके, जहाँ पे हमने चेंजेस इन द स्किन एंड चेंजेस इन द आई को यहाँ पे विजुलाइज किया। ओके, तो आई होप दिस पार्ट 2 सेशन आपको थोड़ा सा कुछ इन्जॉयमेंट हुआ रहेगा। और बचे हुए जो अर्ली साइन ऑफ डेथ के जो साइंस है अलगार मोटिस, रिवर मोटिस और हमारे जो लाइवर मोटिस है ओके वो हम नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे। ओके, तो that is for our today's class guys, hope you all enjoy this session. Okay, so to tune our next part. Okay,